Our next panel session, Food Fortification and Health, Enriching Foods and Enriching Lives. Few pointers I would like to highlight before I invite the panel members on stage. Risk versus benefits of food fortification, the role of food fortification in the control of micronutrient malnutrition, impact of food shelf life due to fortification, ensuring the long-term stability of nanomaterials as fortificants, and many more. And to deliver the wonderful session for the next 1 hour, I would like to call on stage our honorable panel members with a very big round of applause. And please do clap because I want all of you awake, not sleeping. I know we all had lunch, except me, but I want all of you to be very energetic in this session. So first of all, I would like to invite on stage Mr. Atul Joshi, Chief General Manager, Quality and Legal Compliance, Patanjali Ayurved Limited. Atulji, welcome to the India Food Nutrition Summit and Awards 2022. Following Atulji, I would like to call on stage Dr. Shweta Khandelwal, HD Nutrition Research from PHFI. Dr. Shweta, welcome to the India Food Nutrition Summit and Awards 2022. Joining them, I would like to call on stage Ms. Ranjit Kaur, Lead Scientific Regulatory from Marts Wrigley. Ranjit ji, welcome again. See, I was talking about that energy, you know. Heavy hands. All right. Joining them, I would like to call on stage Fani Kumar, Head of the Department for Quality and Regulatory, Zydus Wellness. Fani ji, welcome to the India Food Nutrition Summit and Awards. And I would now like to call on stage the moderator of the panel session, Dr. Agatha Betsy, Senior Specialist Nutrition Strategy and Communications, Mondelez India. Dr. Betsy, welcome to the India Food Nutrition Summit and Awards 2022. So Dr. Betsy, all over to you. Captain of the ship, moderator of the panel, you have a full 60 minutes and looking forward to a cracking session. Good afternoon, everyone. I hope you all had a very energetic lunch, and as we were told that we are not very lacking in energy, and let's just try to gather some more energy and participate into this wonderful session that we are going to have with our expert panelists here. So I'll just like to start this session with a little bit of introduction and putting the context about the session and the topic that we have. It's about food fortification, and you've been briefed about the pointers which are there. And so food fortification is something which is not very new to us. We all are aware about the term in some way or the other. And if I just take you back a little bit to why food fortification is important for a country and globally also, because we've been witnessing that there are multiple scales and gravity of malnutrition that is existing, not only globally in country like the developing country and the developed countries as well. So we see, particularly in India, there is triple burden of malnutrition. There are children who are stunted. There are children who are suffering from wasting and all below 5 years. Of course, that's one sort of malnutrition. Then you have overnutrition, obesity, and overweightedness is increasing in prevalence. And then there is something called as hidden hunger. And that might be something which is very relevant to this session. So when we see that there is slow and steady increase in the deficiency of some of the micronutrients, despite consuming a balanced diet, and in many of the cases when there is not a consumption of balanced diet, we see that there is a steady occurrence of deficiency of these important nutrients which play a very important role in our day-to-day function. And when not consumed in a proper amount, they lead to malfunctioning of the body. We are aware of all these things in one manner or the other. But then how to treat this existing set of deficiencies which, when not catered in the right time, in a right manner, would probably lead to some grave consequences. And as many other global authorities like WHO and FAO all found that food fortification Among the various other food-based approaches, there are like supplementation and all, but food fortification is something which is
considered as cost effective and sustainable. So when we see that malnutrition is particularly seen in developing countries where people are not able to get 2 square meals a day, how to tackle, how to give the food as well as the nutrients that they require to maintain their daily physiological performances. And that's when food fortification was considered as the most sustainable and most preventive measure, a food-based preventive measure, and has been taken up successfully by many authorities, by many national and international agencies. And that's where we will be now discussing today in our session what all are the topics that we should be addressing, how is the national, of course we'll come down to India and we'll touch base a little bit about what is the global scenario on food fortification, how is it helping us, is it really helpful, is it really needed, and if needed, how do we really progress about it, what is industry doing, what are the national authorities and government doing about that. So that's a little bit of brief about the session that I wanted to touch base on. With that, I'll now open the floor with questions to my esteemed panel members. And probably I'll start with Shweta. So Dr. Shweta, we saw that food fortification, of course, is a global approach, is a food-based approach. But do you see that we as an Indian do require this approach and it's useful for us as well? Thank you, Agatha. Before we start food fortification and why is it important, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है ये समझना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आए हैं, चाहे जूनियर चाहे सीनियर पोजीशन पे, बट अल्टीमेटली यू गाइज, एवरीबडी ऑफ यू हैज़ अ फैमिली टू गो टू. खाना सब खाते हैं, राइट? एवरीबडी ईट्स फूड. तो ये टॉपिक साइंस से ज़्यादा आई थिंक इट्स मोर अबाउट पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, बिकॉज दैट्स द एक्सपर्टीज विच आई होल्ड. सो मैं कंपनी में क्या प्रोडक्ट्स हैं क्या नहीं है, फोर्टिफिकेशन का किस प्रोडक्ट से क्या फ़ायदा होगा, मुझे वो सब नहीं पता. बट रिसर्च पॉइंट से या एक नॉर्मल एक एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल मेरा इंटरेस्ट ये है कि हर आदमी जो यहाँ बैठा है उसको ये समझ में आए कि हम फोर्टिफिकेशन की बात क्यों कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इज़ इट रिक्वायर्ड? क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं हम बोलते हैं अदरक वाला चाय दे दो, हाँ वो बेटर मानते हैं दूसरा चाय से. टर्मरिक वाला दूध दे दो, दूध में भी थोड़ा कुछ मिला दिया. सो कोई भी चीज़ फोर्टिफिकेशन का बेसिकली मतलब हम चाह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसको हम वैल्यू ऐड कर दें. जैसे एक चीज़ के साथ एक चीज़ फ्री, वो आप देते नहीं हो फ्री, बोलते हो, लेकिन स्टिल पॉइंट ये है कि कुछ एडेड चीज़ हो जाए तो हमारे को क्या बेनिफिट हो रहा है, ये हमारी थिंकिंग रहती है, राइट? नाउ इस चीज़ को हमारी गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि वो एक पॉलिसी के फॉर्म में इसको लेके आए, क्योंकि उन्होंने ये देखा और अगाथा ने बहुत ब्यूटीफुली इसको डिस्क्राइब किया. सो आई विल नॉट वेस्ट टाइम. प्रॉब्लम्स न्यूट्रिशन के बहुत हैं इंडिया में, और ये मुझे एज अ रिसर्चर बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता है. पहले अगर 10 घरों में एक डायबिटिक होता था, आज एक घर में 10 डायबिटिक हैं. सो यू नो द थिंग्स हैव चेंज्ड, वी ऑल नो दैट. हम डायबिटीज़ कैपिटल हैं, NCDs के सब रिस्क फैक्टर्स आपको पता है, NFHS 5. अगर नहीं भी पता है तो मैं बता रही हूँ, नेशन लेवल पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि हम क्या किस तरफ जा रहे हैं, हमारी हेल्थ कैसी हो रही है. ओके, सो वो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था, विच इज़ कॉल्ड नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्वे जो होता है, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे. उसमें हमारे हेल्थ के इंडिकेटर्स कुछ अच्छे हुए लेकिन कुछ खराब हुए, और जो खराब हुए वो ज़्यादा डेंजरस इसलिए क्योंकि वो अपने आप में डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स हैं, और उसमें सबसे टॉप पे अनीमिया और ओबेसिटी है. और ये दोनों फैक्टर्स फूड फोर्टिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता है कि 1970 से नेशनल अनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम एक चल रहा है इंडिया में, बिकॉज इंडिया के ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट. वी ऑल नो कि अगर अनीमिया रहेगा हमारे में तो हमारे बच्चे आगे मेंटली
थोड़े अच्छे ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ऑप्टिमल ग्रोथ नहीं होगी। प्रेगनेंसी के दौरान डेथ्स भी हो जाती हैं और बहुत टाइम तक मदर्स को डेफिशिएंसी रहने से प्रॉब्लम्स लाइक नेक्स्ट अगर आप कंसीव किया या कुछ किया उसमें भी प्रॉब्लम्स आते हैं। और जो आगे के NCDs होते हैं मतलब रिस्क फैक्टर्स हुए वो भी बढ़े हुए होते हैं। सो असेंशियली अनीमिया एक बहुत लाइक आयरन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल और उसके लिए हमने हर तरीके से कोशिश किया कि हम इसको इम्प्रूव कर सकें एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट फूड फोर्टिफिकेशन देयरफॉर बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी कंट्रीज़ में, यहाँ की कंट्री में, सब में हम सोच रहे हैं आयरन डाल दे किसी तरह हमें जो खाने को मिले। बट अभी तक हम क्या दे रहे थे, कैप्सूल्स दे रहे थे, आयरन की कैप्सूल्स खा लो। कहीं ना कहीं एक स्टिल हमारा इंडियन मेंटालिटी में होता है दवाई अगर हम ले रहे हैं कुछ दिन लो, मतलब दवाई इज़ नॉट योर, इट्स नॉट प्लेट में हम दवाइयाँ नहीं खाते ना, हम रोटी चावल दाल सब्जी वो सब खाते हैं। सो इसलिए ये जनरेशन में ये चेंज आया। उन्होंने कहा दवाइयों से नहीं बात बनेगी, क्योंकि प्रेग्नेंट मदर्स को दिया उन्होंने फेंक दिया, ऊपर उड़ा दिया, सास ने भी फोर्स किया इधर डाल दिया, क्योंकि उनको लगता था ये चीज़ ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ओके, देयर वाज अ मेंटल ब्लॉक। सो अब हमने फूड फोर्टिफिकेशन की बात करनी शुरू करी है, मतलब हम खानों को ही एनरिच कर दें। मतलब अगर एक चीज़ से आपको 1 ग्राम आयरन मिल रहा था तो अब 3 ग्राम मिल जाए, यू नो लाइक दैट। सो इंक्रीमेंटल बेनिफिट ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन अप्रोच बहुत अच्छी है, सोच बहुत अच्छी है, बट इसके सब चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। देयर इज नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड ना, तो कुछ कुछ उसकी क्या implications हैं। आई एम श्योर एज द पैनल विल प्रोग्रेस आई विल टॉक मोर अबाउट इट अगाथा, बिकॉज आई वांट टू गिव चांसेस टू द अदर्स टू स्पीक, बट दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट विच आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि हम क्यों बैठे हैं इधर, क्यों हम बात कर रहे हैं। Over to you. Thank you. Thanks a lot, Shweta, on that. And thanks for reminding us that we should be consumer friendly in our conversation also. so that you guys don't get into the dose. Thank you, Atulji. So before I move to the next question, is there any other point that anyone wants to share from the panel on the same question? Why does India need fortification? So. Atul sir, yeah. गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर आप देखेंगे कि फोर्टिफिकेशन क्यों करना है, एक तो हमारी आदत है हम कि कोई भी चीज़ विदेश में हो रही है तो फटाफट कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि डेवलप कंट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं विकसित देशों में, बहुत सारे विकसित देशों में फूड फोर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। तो उन्होंने बहुत रिसर्च की होगी, तो हमें लगता है कि जो अच्छा काम किया उसको डायरेक्ट रेप्लिकेट कर लो, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा मैं आपको बताऊं, एक यूनिसेफ का एक रिपोर्ट आया था 2019 में, जिसमें बोला गया था कि हमारी 80% हमारे टीनेजर 80% जो हैं माल न्यूट्रिशन वाले हैं या उनको हिडन हंगर है। अभी जैसा अगाथा ने बताया था, माल न्यूट्रिशन मतलब हमारी बॉडी को डेली काम करने के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट की, अगर वो नहीं मिलती है तो आप माल नॉरिश कहलाते हैं। और अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट जिंक, आयरन, आयोडीन और फोलिक एसिड की वजह से होती है तो आपको हिडन हंगर बोलते हैं। दूसरा एक रिपोर्ट आया उनका 2021 में, जिसमें बोला कि हमारी 40% गर्ल्स और 18% बॉयज़ दे आर एनेमिक। हम सबको पता है, जो अभी इन्होंने भी बोला कि जो एनेमिक होता है वो थोड़ा सा लेस प्रोडक्टिव होता है। दूसरा फ्रीक्वेंट फटीग उसको होता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्लो होता है, और सबसे ज़्यादा किसी भी इन्फेक्शन के लिए प्रोन होता है। ये दो चीज़ें हमारे टीनेजर्स और यूथ के लिए हैं। और एक साइड हम क्या बोलते हैं कि हमारी मेजर चंक ऑफ आवर पॉपुलेशन आर यूथ, जिसके कंधों पे जिम्मेदारी इस देश को अगले सीढ़ी पे ले जाने की। तो अगर वो सब मलनॉरिश होंगे, हिडन हंगर से होंगे, तो फिर सिचुएशन थोड़ी अलार्मिंग है। लेकिन इसके साथ ही ये डेटा इस चीज़ को भी बताता है कि हम लोगों को एज ए फूड प्रोफेशनल, एज ए न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, एज ए फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए और राइट डायरेक्शन में जाने के लिए। इसलिए फूड फोर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक अभी मैम ने बोला था कि बेसिकली जब आप किसी भी पर्पस किया फूड फोर्टिफिकेशन का, किसी भी टारगेट पॉपुलेशन का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, तो उसके बेसिकली स्टैंडर्ड 3 मेथड हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन। आप आदमी को खाना दीजिए, कुछ प्लांट सोर्स से दीजिए, कुछ एनिमल सोर्स से दीजिए, कुछ डेयरी प्रोडक्ट दीजिए, कुछ फाइबर दीजिए, तो वो सब कुछ खाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखोगे कितने लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है वो सारी चीज़ें अपनी प्लेट में अफोर्ड कर पाएँ। दूसरा ज्योग्राफिकल चैलेंजेज है, कई जगह कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है। तीसरा ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरा एक होता है जिसे बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन। आप जाइए किसी एक प्रोफेशनल के पास और वो आपको टेस्ट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा किस चीज़ का डेफिशिएंसी है, उसके बाद आपको प्रिस्क्राइब करके कुछ सप्लीमेंटेशन देगा। ये भी कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, और हर जगह आपको क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स नहीं मिलेंगे।
तीसरा है फूड फोर्टिफिकेशन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप घर में चावल खाइए, चावल से बने प्रोडक्ट खाइए, आटा और आटे से बने प्रोडक्ट खाइए, उसको तेल में बनाइए, नमक डालिए, दूध और दूध से बनी चीज़ें लीजिए, आप उसको लेते रहिए, आपकी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो जब इतना सिंपल है, इतना कॉस्ट इफेक्टिव है, इतना स्ट्रक्चर्ड है, तो इसको क्यों नहीं करना चाहिए। और ये जैसा शुरू में ही बोला कि रादर देन हम ये सोचे कि हम एक इंडस्ट्री से हैं, सेमिनार से, हमें लगना चाहिए कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में फोर्टिफिकेशन, FSI ने 2013-14 में रिगरसली ड्रिवन किया था इस एजेंडे को, लेकिन आज भी बहुत अच्छे से नहीं गया है। उसका कारण है कि थोड़ा सा लोगों का इस दिशा में लोगों को पता नहीं लगता। अगर एज ए इंडस्ट्री हम फोर्टिफाइड फूड को प्रमोट करते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं, इनका कोई बिजनेस एजेंडा है, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रमोट करती है और इंडिविजुअल एज ए हम लोग प्रमोट करते हैं तो वो बहुत जल्दी से उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट जाती है। जैसे आप देखेंगे 2 बूथ पोलियो की कोई रेगुलेशन तो था नहीं इसमें, है ना, या अभी कोविड में जो हुआ, तो लोगों का प्रमोशन जो होता है, तो हम सब लोग एज ए प्रोफेशनल जब इस हॉल के बाहर जाएं, हम इस चीज़ को प्रमोट करें, अपने सर्किल में बताएं कि फोर्टिफाइड फूड जिसमें F+ लोगो होता है उसको खाने से ये एडवांटेज है, तो ये एक नई डायरेक्शन में जाएगा। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ टॉपिक को, कि फोर्टिफाइड फूड क्यों खाना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन है। वो एक कहावत है हमारी, आई एम रिप्रेजेंटिंग पतंजलि आयुर्वेद, तो हमारे वहाँ एक कहावत है कि जो व्यक्ति निरोगी होता है वही सहयोगी होता है, और वही समाज के लिए उपयोगी होता है, और वास्तव में वही योगी होता है। तो व्हेन यू आर कंज्यूमिंग दैट फोर्टिफाइड फूड विद हाई एनर्जी लेवल, तो आप बेसिकली अपने काम को अच्छे से करते हैं और आप नेशन की GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा, एक आपने कहावत सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा वन। इफ़ यू आर कंज्यूमिंग फोर्टिफाइड फूड तो योर एनर्जी लेवल इज हाई, यू आर कंट्रीब्यूटिंग वेरी, एंड यू आर बेसिकली स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी थ्रू आउट योर सोसाइटी। तो इसलिए आपको फोर्टिफाइड फूड खाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, और इसको खाने में क्या, कोई टेस्ट में डिफरेंस नहीं है, कोई शेल्फ लाइफ का इशू नहीं है, और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को साइंटिफिक फैक्ट्स को लेके, रिसर्च को लेके इसको आगे किया। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट अतुल जी ऑन दैट। तो जैसे आपने हाईलाइट किया, ऑफ कोर्स माल न्यूट्रिशन इज़ नॉट ओनली फॉर द पर्सनल बेनिफिट। अगर आप निरोगी हैं तो आप राष्ट्र के विकास में योगदान देंगे। सो इट्स मोर टू डू विद the growth of the nation, the economy of the nation, and actually it has much bigger repercussions and much bigger consequences later on. So with that I'll just come to the next question. आपने बताया कि किस तरीके से of course गवर्नमेंट जो है बहुत सारे पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ लागू कर रही है फोर्टिफिकेशन के लिए, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या हैं। तो आई वुड जस्ट लाइक टू नाउ आस्क मिस्टर फनी, how is industry, of course we know that government is doing too much, but how is industry helping in the fortification of some foods, या कोई particular किस तरीके से industry योगदान दे रही है इस strategy? Thank you. Good afternoon everyone. So there are 2 type of fortifications generally industries are driving. One is this the 5 जो mandatory categories है, like in a milk fortification, rice, wheat, oil, जो प्लस ऑफ fortification के साथ गवर्नमेंट ड्राइव कर रहा है, वो fortification तो इंडस्ट्रीज कर रहे हैं, बट इंडस्ट्री वॉलंटरीली ऑल्सो काफ़ी fortifications में आ रहे हैं अभी। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइक whether it is a biscuits, whether it's any dairy based products or fruit juices, everywhere fortification तो इंडस्ट्रीज वॉलंटरीली कर रहे हैं। आई नो it's not that much expensive, but it's not the material expensive, but उसका uniformity maintain करने के लिए regulation. So we discussed about the importance of the fortification and everything. So everything has its own way of pros and cons. हर चीज़ की तो दूसरी तरफ नुकसान भी होता है. Like if I take example of iron, if too much of iron fortification हो जाता है, so see, the industries की सबसे बड़ा challenge ये भी है. So we need to maintain the uniformity and correct dosage. अगर बिकॉज इंडस्ट्री में काफ़ी लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग होता है, इफ़ द यूनिफॉर्मिटी इज़ नॉट गुड, इफ समवन टेक्स द मोर आयरन, उनका जो नेचुरल जो गट के अंदर जो वायरस के साथ, एनी टाइप्स ऑफ वायरसेस के साथ फाइट करने की जो बेसिक इम्यूनिटी है वो डैमेज हो जाता है गट में. सो देन इट्स people generally fall sick, like any best example is malaria and typhoid kind of thing. जो natural immunity है body की वो खत्म हो जाएगी if you have the more iron. So the balancing of that iron is very important. So that's why industry do a lot of research also. It's not only simply fortification they do science based research.
whether, and the selection of your the vitamins also, type of whether it is alcohols of vitamins lena hai, esters lena hai, how it is balancing, and which type of the methodology I'm using to do the fortification. So industries do a lot of research behind. It's just not simply putting the कुछ vitamins को dose कर लेंगे, कुछ minerals है. Again now industries also moved ahead of like calcium. If I talk about the minerals, calcium earlier is the simple calcium fortification होता था. अभी people are talking about the bioavailability calcium. It's rather simple calcium. So क्योंकि जो vitamins minerals हम fortification करते तो body में exactly use हो रहे कि नहीं तो it's depositing एक कहीं पे deposit होके रह जा रहे, नहीं तो it's going out of the body and it's not doing the value what it should do. उसको जो अच्छा काम करना है वो हो रही कि नहीं है बॉडी में. सो इट्स नाउ द क्वेश्चन ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी इज आल्सो कमिंग. सो नाउ द इंडस्ट्रीज इज वर्किंग लॉट ऑफ रिसर्च ऑन द बायो अवेलेबिलिटी पोर्शन एज वेल. Thank you, Funny. So, of course, bioavailability is one of the most important factors which should be considered when any product or any vehicle is being fortified. And we do have some guidelines, and then further adhering to the guidelines, हमारे पास guidelines के साथ साथ regulations भी हैं. FSSAI ने कुछ बताए हुए हैं कौन कौन से compounds आप use कर सकते हैं. So with the guidelines and monitoring part, I would like to now head to Ranjit to tell us how is fortification, is it a guided process? Do we have some clear guidance in terms of how do we really approach if there is a new company wants to fortify? What sort of guidelines and what sort of regulations do we have? So I think we understood that a researcher is saying that yes, there is a need, of the fortification. There is industry who wants to partner, and then comes the role of regulator. That wherein those regulatory bodies are trying to lay down and guidelines. So it is, I think, in October 2016 that through an operationalized notice that FSSAI has made the regulation which is called as Food Fortification Regulation, wherein a structure was laid out in terms of for the products like wheat, rice, oil, milk and salt, in terms of like what are the nutrients which you can use. And then I think in October 2018 it was actually gazetted, so wherein we had to also comply if people who are into those particular staple. And how is it as a industry or person who are into it, and if they are saying that they are fortifying, so they have to actually go to a particular lab and analyze those, that what nutrients which they are adding, whether the contents which are being mentioned are complying to this or not throughout the shelf life. So basically I think all of us are aware of this fortified logo which is there. So to get yourself that particular fortified logo for your products, actually you need to go and submit an NABL accredited lab report with all the nutrients for which you are saying that you have fortified. And then I think few days back there is a system also launched that in FOSCOS, when your license is actually addressed for that food, it will be linked to what reports you have submitted. So they will be reviewing in terms of the reports which is being generated specifically for nutrients, and that's how they will be giving you that permission to use that particular logo. And earlier I think it was only for a limited time, and now it is actually linked to the license. So if you have a FSCI manufacturing license and you want to manufacture a particular product, and if you give all those details till the license validity, you will be able to actually put that particular logo on the products. So this is a little bit on the FSCI part in terms of what you need to follow. And right now there is, I think all of us have seen 2 drafts which is related to the processed food which has been issued, right, wherein they're talking about breakfast cereal, about I think bakery products like rusk, biscuits, and also fruit juices. So I think maybe in some days we will also see that particular regulation getting gazetted, and wherein the processed food industry will also get that guidelines that how and what they have to actually put in the nutrients. And with regard to this regulation, there is another one which is advertisement and claim, right? Because most of us, while we are fortifying a particular food product, we also want to actually put a nutrient claim that, fine, this is what, this particular vitamin or mineral will be doing. So in that case, you have to refer to the advertisement and claim regulation, which talks about that, what is it that you can add, what are the limits defined, and what are the claims
which you can make. So I think these are ones, at least at the local regulation level, which can be as in reference from the regulatory point. And going back to a little bit on the global aspect of it. So we, I think, all know about Codex, which exist. And Codex has got these NRVs, which are called as the nutrient reference values for nutrients, right? So basically, when you're planning to fortify your product, then these are also the values which can be referred definitely for reference, and something like, if you're looking for some global regulation. So I would say that regulator has made that journey, and a lot of it is now available. It is now up to us that how do we actually comply to it and make the product available as per to what the requirements have been made across. So that's on the regulatory part of it, but everybody is working to educate the consumer. So ultimately, as a consumer, if I talk about myself, then we have to be, educated about. There is so much of plethora of information. You Google it, you get what not, right? So I think COVID time has taught that we are talking about, okay, adrak ki chai ke liye. So we are also taking, okay, pop up this pill. Okay, maybe it will prevent me or protect me from this. So I would say as a consumer, we should always make an informed choice, and that informed choice should be something which should be backed by some kind of information or data you have referred. Do not go back and just refer, okay, what we talk about this WhatsApp university that, just forward and that's how it. I would say as a consumer, please make that informed choice when you're selecting a particular product. Just not go, how the people are going around. So I think this is just certain aspect which I wanted to share if anybody wants to add. Not on this point, but in general, I think there were two other things which I wanted to mention. जो fortification में कई बार बात ही नहीं करते हम उसकी, लेकिन please understand that climate change is a reality which is happening. Again, from research point of view, आपको सबको पता है कि COVID हो या आने वाली और infections जो भी होंगे, because that was not the only first and last pandemic नहीं था, और भी आने वाले हैं, and we have to be prepared. That's the way the society is heading towards. Our glaciers are melting. We are experiencing heat waves already in Delhi and so many other places. तो climate change का nutrition से बहुत important link है. वो हम miss कर जाते हैं कई बार fortification में. वो एक sort of need बनाता है, but I'll explain that with an example right now. But please understand कि हमने काफ़ी सारी research, जैसे Sam Myers का group है in Harvard. मैंने Harvard का नाम इसलिए लिया, बहुत सारे और authors भी हैं, but वो हम लोग समझते हैं कि अच्छी quality है ना research की. तो उस point से मैं बता रही हूँ कि it's a very well studied area. तो सैम मायर्स के ग्रुप ने क्या किया, उन्होंने ये स्टडी किया कि जब हम ज़्यादा हीट वेव्स दे देते हैं या ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ज़्यादा पोल्यूशन है, तो उस समय जो उपज होती है, जो ईल्ड्स आ रहे हैं, वो डिक्रीज्ड क्वांटिटी है. तो कई बार हम लोग बोलते हैं अरे एप्पल में वो टेस्ट नहीं है, आम में वो टेस्ट नहीं है. टेस्ट भी और न्यूट्रिशन भी नहीं है एक्चुअली. जो हम बोलते हैं हमें क्यों हो जा रहा है, हम भी तो फल सब्जी ही खा रहे हैं एंड ऑल दैट. हाँ, लेकिन हम इंजेक्शन लगा के सब्जियाँ खा रहे हैं, या हम फलों में न्यूट्रिशन की क्वालिटी कम हो गई है. सो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की तरफ प्रोन कर रहा है, मतलब हमें बढ़ा रहा है ये. तो ये एक फैक्टर है. तो इसलिए अपना योगदान ना केवल इन्फॉर्म चॉइसेस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स में दें, बट क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी बचाने के लिए, चाहे वो पानी वेस्टेज हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज हो, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों का भी प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बिकॉज क्लाइमेट चेंज डिक्रीजेज योर न्यूट्रिशन कंटेंट इन द फूड्स, एंड सो ज़्यादा हमारे को चांस होगा कि हमें और बायो फोर्टिफिकेशन और ये फोर्टिफिकेशन में चीज़ें डाल रहे हैं, केमिकल्स, नई भी केमिकल्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स भी, कुछ भी, बट it's something which is different than what the regular mechanism is. So climate change is an important issue I thought we missed in our conversation we should bring up. Thanks a lot, Dr. Shweta, for highlighting that climate change is actually one of the biggest factor which should be considered, or of course, baki sare foods ke saath. But I'll just want to come back to maybe something that we missed before starting with the fortification. What all are the deficiencies, the major deficiencies that India is currently struggling? Of course, we've seen that nutrition data has evolved a lot over a period of time. कुछ थे पहले जो बहुत बड़े deficiencies हुआ करती थी, आज की डेट में नहीं है, because there have been many national policies and strategies to it. तो आप उसमें थोड़ा सा हमें बताइए, what are the current need, what is the current need of the country? So उसको बताने से पहले दो बातें. Again,
please remember that I am not anti-fortification, not pro-fortification. I am pro-evidence. मुझे सिर्फ evidence से मतलब है. So that's my disclaimer. And हम लोग अगर deficiency diseases को point out करते हैं, it's not that अगर vitamin D की for example आजकल massive deficiency है. We all know food को जितना भी हम कर लें, but vegetarian sources में vitamin D का होना थोड़ा कम रहता है और sunlight का आजकल impact उतना नहीं होता कि हम convert कर सके, क्योंकि जिस duration में 10 to 3 के बीच में बोला जाता है usually ज़्यादा अच्छा conversion होता है melanin का, वो उस समय हमारा बाहर especially ऐसे weathers में नहीं पॉसिबल होता. सो विटामिन डी का डेफिशिएंसी हमारे काफ़ी सर्वेस थे जो 80 to 90% स्कूल चिल्ड्रन में हैं. बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम विटामिन डी जाएं और भर लें पैकेट में. मतलब डेफिशिएंसीज बताने का प्लीज़ कहीं भी ये अर्थ नहीं है कि आप उसको अपने आप को प्रिवेंटिव उसमें चले जाएं मोड में और थेरेप्यूटिक डोजेज लेने लगे. Please understand a balanced diet ultimately is the best way to deal with anything. Dietary diversity की भी बात की, अगर हम fortified foods भी ले रहे हैं या जो भी, but you should remember that everything has its plus and minuses. So हमें एक पूरी पोषित थाली जिसे बोलते हैं ना, थाली को अच्छा सा न्यूट्रिशन होना चाहिए. एक चीज़ अच्छी खा के फ़ायदा नहीं होगा. मैं बेस्ट खाना भी खा रही हूँ पर मैं अपने बच्चे को मार मार के खिला रही हूँ तो भी नहीं लगेगा ना. तो वो इट्स ऑलवेज सेड कि केयर भी ज़रूरी है, न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है, एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है. तो मैं एग्जाम्पल जब हम पढ़ाते हैं कॉलेजेस में तो हम हमेशा बोलते हैं ट्राईपॉड स्टैंड सबने देखा है, केमिस्ट्री लैब में सबने काम किया है ना. ट्राईपॉड स्टैंड होता है और क्रूसिबल होता है. ये क्रूसिबल है न्यूट्रिशन का. जो मैडम पूछ रही है मुझसे डेफिशिएंसीज, क्रूसिबल इज़ न्यूट्रिशन फॉर मी कि बेस्ट न्यूट्रिशन. पर क्रूसिबल खड़ा हो जाएगा अगर एक भी टांग टेढ़ा हुआ नहीं होगा ना. और उसमें से सिर्फ एक पैर, ओनली वन ऑफ द लेग्स इज न्यूट्रिशन, बाकी दो और चीज़ें भी हैं. सो एक तो खाना है विच इज़ ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके बिना खड़ा नहीं होगा, बट देर इज़ अ सेकेंड थिंग विच इज़ इनडायरेक्ट वेज बाय विच न्यूट्रिशन गेट्स इम्पैक्टेड. एजुकेशन. मुझे जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, अगर मैं पढ़े लिखी नहीं हूँ या अगर मुझे अवेयरनेस नहीं है, इवन इफ जो पुराने पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी विजडम जिनको होता था, तो वो अगर नहीं है, हैंड वॉशिंग, सैनिटेशन, ये खाना, ये सैनिटेशन मुंह में नहीं डाल रही हूँ लेकिन वो मेरा डिटरमाइन कर रहा है कि मेरा न्यूट्रिशन कितना मुझे लग रहा है. सो वो इनडायरेक्ट इफेक्ट्स बोलते हैं, सेकंड पेयर जो है. और थर्ड पेयर है इन्वायरमेंट, जो मैंने बात की, क्लाइमेट चेंज हो या पॉलिसीज़ हो. पॉलिसीज़ भी, क्योंकि कोई चीज़ को सस्ता है तो चाहे आप जितना भी F+ लगा लो, ये कर लो, जो सस्ता है आदमी सोचता है वो उठा लो. 90%. कुछ हम लोग जैसे हैं जो केयर नहीं करते, हम न्यूट्रिशन का सोच लेंगे, इधर सोच लेंगे, थोड़ा महंगा है तो बेटर है ये सोच लेंगे. लेकिन यूजुअली आमतौर पर लोगों को प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो वो उसकी पॉलिसी. तो क्रूसिबल खड़ा नहीं होगा जब तक ये तीनों मेरे पैर ठीक नहीं होंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन इज़ वन पीस विच इज़ फाइन, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट रिमेंबर दैट जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स उन्होंने मुझे बोला बताने के लिए, विटामिन डी एक छोटा सा एग्जाम्पल था. मैल न्यूट्रिशन में हम जब मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं, कई सारे फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन की कमियाँ होती हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट, आज भी मैं बोल रही हूँ, जो इस रूम में बैठे हैं या जो बाहर भी हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओबेसिटी वाला, विच इज़ द डबल बर्डन जिसे बोल रहे हैं ना आजकल हमारे सब जगह. आप एक नज़र घुमा के देखो, पहले बसेस में जो करते थे या मेट्रो में ट्रैवल करते थे, आज हम जो कर रहे हैं सब में थोड़ा सा. और कोविड हम कभी डाल देते हैं, अरे कोविड में घर में बैठे थे इसलिए हो गए, कभी कुछ हम भी हो जा रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, जंक फूड खा लिया या कोई चीज़. बट प्लीज़ रिमेंबर दैट राइजिंग बर्डन हम लोगों ने फिर भी कर लिया. वी लाइक सॉर्ट ऑफ लिव्ड एटलीस्ट हाफ आवर लाइव्स, बट आवर चिल्ड्रन which are betting so aggressively, marketing इतना ज़्यादा है उनको जंक फूड्स का, वो I think responsibility कहीं ना कहीं हम सबकी है. It is very important because one of the questions she was meant to ask with me was ये fortification के बाद भी क्या चीज़ का ध्यान रखना है. So I think HFSS foods जो high fat, sugar and salty foods है, इनकी भी choice करना. बच्चों के लिए क्यों हम एक खा रहा है चिप्स का पैकेट या एक फ्रूटी पी रहा है, इट्स ओके, यू नो लाइक दैट. हम सो, बट प्लीज रिमेंबर दिस इज गोइंग टू हैपन ऑन अ डेली बेसिस, मल्टीपल टाइम्स इन अ डे. वी नेवर वर एक्सपोज टू दिस. हम लोगों की जनरेशन में इतना अग्रेसिव नहीं था. आजकल स्विगी जोमेटो, वी प्रेस एक बटन एंड थिंग्स आर कमिंग होम फॉर यू नो, विच इज़ वेरी नाइस. बहुत कन्वीनियंट है ये हमारी वर्किंग मदर्स, वर्किंग पेरेंट्स, वर्किंग फादर्स के लिए. बट ये कुछ जो दे रहा है तो कुछ ले भी दे रहा है ना हमसे. वो चीज़ का तालमेल मेरा इंपॉर्टेंस है बताने का. तो ये मैं इसको वो सत्संग वाला प्रवचन नहीं बना रही हूँ, बट द पॉइंट इज कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम न्यूट्रिशन की बात करें लेकिन उसको कॉन्टेक्स्ट में लीजिए. एक आइटम लेके आप यहाँ से बेनिफिट करके फिर भी हम नूडल्स ही खाएंगे बाहर जाके ना, पर क्यों? तो अगली बार थोड़ा सा किसी को भी, एक इस पूरी ऑडियंस में 2 लोगों को भी सेंसिटाइज हो जाए तो मुझे लगता है वो एक ज़्यादा ज़रूरी मेरा वो है. थैंक यू.
No, very comprehensive. बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि of course adding nutrients into a food is not the only solve. There are many other things that have to be looked into. उसको एक perfect combo बनाने के लिए कि वो आपकी body में जाए और उतना ही health benefits offer करे. So of course now we have that there are certain set of nutrients which are required by our population than other population. I'll just try to ask my industry colleagues here and if they can provide me their respective views, and it's open to all three of you, as to what all challenges does industry face when they are fortifying. Of course, we have a good set of guidelines, we have good set of regulation, there are processes, policies, strategies in place, but in सबके होते हुए भी, and the government has helped us a lot, industry has reciprocated also. What are the challenges they are still existing, and if they are catered to, probably the benefit would be multifold. I'll start with you, Funny. Yeah. So major challenges is, one thing is now with the labeling and display regulations and everything, it's not only the for regulation, in earlier also, we need to maintain the RDA limits. When we do the fortification, we need to maintain the RDA limits. And the second challenge is the availability of the right compound. See, today we can get the vitamin premixes and everything from the multiple companies. So आप वो procure करेगा, add करेगा, but उसमें क्या challenges होता है? So itself is a denature हो जाता है those vitamins, and sometimes, but end of the day, the consumer is paying his hard-earned money. So we are answerable, and it's our moral responsibility to ensure that till the time of shelf life, जो भी हम promise किया है, vitamins है, minerals है, जो fortification के बाद वो consumer को मिले, that is one thing, and that has to also deliver it's a right job. Suppose आपने एक vitamin C बोला है, and vitamin C do the immunity booster. So in the COVID time में सब लोग immunity booster के नाम पे तो क्या क्या बेचा है, क्या क्या खाया है, but really it doesn't any impact on the body and everything. Consumer को नहीं पता होता है. So everyone thinks, yeah, मेरे को इतने mg of vitamin C खाना है, मैंने खा लिया है तो I'm good. But actually वो impact कर रहा है. So industry की सबसे बड़ा challenge ये आता है choosing your right compound. So आप कौन सा, like again I talk about the calcium also. So चूना जो होता है calcium में, so उन्हीं को खा के अच्छा मेरे को calcium मिल गया. But generally वो कैल्शियम कितनी बायो अवेलेबिलिटी, मतलब मैं 1 mg ऑफ कैल्शियम ले रहे हैं, 10 mg ऑफ कैल्शियम, जो भी mg ऑफ कैल्शियम ले रहे हैं वो पता नहीं है, तो पीपल बिलीव दैट मेरा बोन हेल्थ ठीक हो गया, बट द रियल कैल्शियम बायो अवेलेबिलिटी. सो इंडस्ट्री की बायो अवेलेबिलिटी कैल्शियम अगर पूछा है तो इट विल कम एट द ह्यूज कॉस्ट, बट कंज्यूमर को लगता वो पता भी नहीं है. एजुकेशन लेवल्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑफ अबाउट दैट पर्टिकुलर दिस थिंग. सो ये एक चीज़ है. एंड द थर्ड वन इज द, इफ यू वांट टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी, the manufacturers face a huge cost for the capital expenditure, the machinery, not the fortification. The raw materials का काफ़ी सस्ता होता है compared to the, if I talk about the MOFI, the machinery की example, if I talk about the rice, the medium scale industry की, rice scale industry की होता है तो I think 3.5 crore or 4 crores machinery for a small medium scale setup of, so 4 करोड़ रुपए वो machinery में लगाने हैं. उसकी fortification की जो material cost काफ़ी सस्ता होता है, but machinery is a huge costly expenditure. Government do certain supporting, subsidizing the things and everything, but still it's very, very expensive. And the next is the shelf life of the product, as well as how it is impacting. And the scientific challenging industry को ये भी होता है, sometimes you have both water soluble vitamins and oil soluble, fat soluble vitamins. But हमारा fruits है ना, वो सारी combination when they deliver also, when they use, like if I talk about the juices and everything, जिसमें water ज़्यादा होता है, but I can't give only the water soluble vitamins, so fat soluble. यहाँ पे जो industry की और the manufacturer of the vitamins की जो काफ़ी challenges आता है, how they think. So another thing, now the recent concepts are, it's not very recent, the nano micronutrients, is the particle size, because the surface area reduce करने से उसकी the usage in the body increases significantly. The research also supported that, the bags. So these are the challenges. So maybe I think I can just add two more. Yeah.
So basically, like I think the cost factor is definitely there, which is coming with the material and the technology, but the other is the acceptability of the consumer. Because for example, like, you know, we are into confectionery, so it was like we thought that maybe, you know, a candy can be a very good vehicle if you have to actually deliver maybe iron, right? But then it was like the taste was not something, you know, which the consumer was expecting. So I think that also plays a major role, because when, you know, we launch it, it's just that, you know, we don't see the acceptance by the consumer for a fortified product or a fortified material which is there. And specifically, I would say the challenging is also on the labeling aspect of it. That maybe, you know, like India, we have made it mandatory that salt has to be like iodized. And even all our product labels should be having that as an ingredient, iodized one. But if I'm planning to import from some other country, right, so wherein it is like, you know, iodine deficiency is not being at all addressed, then it becomes a lot more challenges, because there they are not at all using iodized salt, right? For then that's a major challenge in terms of, you know, complying to those requirements, which is being laid down definitely by a regulator, but also like, you know, to bring those products. So I just thought of just addressing from an industry point some points. इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा. अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो 2-3 चैलेंजेस हैं. एक इनको जिसको आप डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन चैलेंजेस, जो अब आप फूड फोर्टिफाइड करते हैं फैक्ट्री के अंदर क्या चैलेंजेस हैं. दूसरा एक होता है जब आप कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं. इन पतंजलि वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सप्लाई चेन सिस्टम. तो हमारे रिटेल आउटलेट पे जो आदमी बैठा है वो कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करता है. हम कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाए उस पर काउंट नहीं करता, डिपेंड करता वो आदमी क्या कम्युनिकेट कर रहा है. मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ. ईट राइट मेला था दिल्ली में, FSI ने किया था, तो मैं उसमें एक काउंटर पे खड़ा था. तो फोर्टिफाइड आटा था वहाँ पर. तो एक फैमिली आई, और नॉर्मली आप सोचेंगे फेट में लोग घूमने आते तो 10 किलो का आटा कोई लेके नहीं जाता है घर पे. लेकिन वो फैमिली आई तो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ दिस. उसने बताया ये फोर्टिफाइड आटा है, साइंटिफिकली डिज़ाइन है, इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन है, फैमिली के लिए बहुत अच्छा है. उस फैमिली ने कुछ दिमाग नहीं लगा, बोले एक 10 किलो हमें दे दीजिए. मतलब दिस इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब विच कैन इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है ना. और उसके बाद उस आदमी का ड्यूटी खत्म हो गया, दूसरा वॉलेंटियर आया, उसके बाद और लोग आए, उन्होंने पूछा ये क्या है, बोले साहब इस आटे में केमिकल है. खेल खत्म. आप समझ गए. तो आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं. वी नीड बेसिकली कम्युनिकेशन, तो लोगों का प्रेफरेंस है. अभी क्या हुआ है कि अगर जब भी आप कोई प्रोसेस अपनी फैक्ट्री में लगाते हैं तो आप क्या देखते हैं, आप सोर्ट एनालिसिस करते हैं. तो अगर आप इसमें देखेंगे स्ट्रेंथ में हमारे पास लार्ज कंज्यूमर बेस है, डाइवर्स फूड एप्लीकेशन है. वीकनेस में अगर देखें कंज्यूमर प्रेफरेंस, जो अभी रंजीत ने भी बोला, वो एक बहुत बड़ा इशू है. लेकिन अभी थैंक्स टू द कोविड लोग अभी क्या है कि इम्यूनिटी के नाम पर या हेल्दी के नाम पे कुछ भी खा लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं. बट अगेन एक चैलेंज है, बिकॉज जितना भी फूड फोर्टिफिकेंट है वी आर बेसिकली मेजरली वी आर इम्पोर्टिंग. तो उसका प्राइस का वोलेटिलिटी है. कभी यूक्रेन लड़ाई जो होता है, कभी जर्मनी में एक फैक्ट्री में आग लग जाता है, एकदम से उसका फोर्टिफिकेंट का प्राइस जो है 5-6 टाइम बढ़ जाता है. बट यू कान, गवर्नमेंट का और FSI का एक्सपेक्टेशन है फूड बिजनेस ऑपरेटर से कि आप सब फोर्टिफाइड और नॉन फोर्टिफाइड सेम रेट पे दोगे, तो आप उस प्राइस को कंज्यूमर को पास ऑन नहीं. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तीसरा क्या है, जो ब्रांडेड फूड हैं अगर वो फोर्टिफाइड भी हैं तो उस पर GST से एग्जम्पशन नहीं है. अगर GST से एग्जम्पशन हो जाएगा तो एक प्रमोशन हो जाएगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम जो अपर क्लास है आपका उसके लिए हो जाता है. लाइक FSI उनके लिए बहुत सारे सेमिनार्स करता है, CII करता है, गेन करता है, और FSI का एक विंग है जो FFRC वो करता है. लेकिन जो डाउन द लाइन है उनका ट्रेनिंग नहीं होता. तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो अगर आप एक मैसेज एक्सपर्ट से लेते हैं तो आप जो उसको डाउनलोड करते हैं वो डिफरेंट होता है. एक होता है कि आप 3-4 मीडियम के बाद आपके पास में होता है, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाता है. तो ये एक बहुत बड़ा है जिसमें अवेयरनेस. दैट्स वाई सो मेनी टाइम वी हैव रिक्वेस्टेड FSI एंड गवर्नमेंट टू डू दैट. इसमें मास कैंपेनिंग करे, क्योंकि रेगुलेशन तो है नहीं, मैंडेटरी है नहीं आपका. और ऑपरेशन चैलेंजेस की बात करते हैं, क्योंकि यू आर नॉट रनिंग इनसाइड योर फैक्ट्री 100% फोर्टिफाइड फूड. तो आपको जब आप लाइन में फोर्टिफाइड और नॉन फोर्टिफाइड के बीच में गैप होता है, तो लाइन क्लीनिंग मैट्रिक्स है, आपका चेंज ओवर मैट्रिक्स है, आपका स्टोरेज प्रोटोकॉल है, आपके पास 2 पैकिंग है, एक जो आपका फोर्टिफाइड उसमें F+ लोगो होता है, दूसरे में. तो वो सब इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, ये सारी चीज़ें करना. दूसरा कि जब आप लाइन चलाते हो तो आपके इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल डिफरेंट करने पड़ते हैं, वेदर यू आर गेटिंग दैट डिजायर्ड आउटपुट और नॉट. तो ये एक चैलेंजेस है. और जैसे जैसे फोर्टिफिकेशन का एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा सोसाइटी में, तो शायद इस चीज़ को आसानी हो जाएगी. थैंक यू. Thanks a lot, Atul ji, on that. So if, now coming back to the science of it again, Shweta,
सारे products, we are seeing that there are plethora of products in the market. Fortification का regulation है, policies हैं, guidelines हैं, और industry को एक opportunity दी गई है. There is a problem. Industry has been asked to cooperate and help in the solving of the problem. Is it okay, or maybe how should we? And I think you've alluded to it earlier also. आप एक clearly थोड़ा अच्छा message दीजिए कि fortified products हैं market में. How should a consumer go, and is it okay for everyone to eat every fortified product in terms of a daily diet? How should we include fortified products? Because we see that there are guidelines, even the dietary guidelines for Indians, which is a bit older, but there are revisions going on. It suggests that for children, it's good that you include snacks which are fortified as part of a balanced diet. But what do you suggest as a normal man or a normal female? How should they include fortified foods in their diet? So again, I would change that question a little bit. I don't think I'm saying that everybody should have fortified foods. I'm still not convinced on that. I think there is a section of population, a large population, which requires it. I completely agree with you on that particular part. I also think this fortification is one of the complementary strategies. It's not the only strategy, and we should remember that. So with that disclaimer again, before this, मेरे हिसाब से solution जो है वो consumer को motivate करके वो ये खा ले या industry को pressurize करके कि वो product बना दे. मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा holistic solution सोचो. So मैंने एक यहाँ पे जब आ रही थी तो मैं I was just thinking in the car. So मेरा solution है perfect. PERFECT. I know मैं self praise नहीं कर रही हूँ, but this is an acronym for me, and I will explain to you what I mean by that. So for me, fortification की बात हो या public health nutrition की बात हो, in general, because there are a lot of things. Fortification is not only solving micronutrient problems, it's doing a lot of other things. It's giving employment, for example, it's helping build capacity, you're learning a new thing, और भी उसके फायदे हो सकते हैं, तो नुकसान भी हो सकते हैं. अभी research still है जिसकी ज़रूरत है. In fact, I'm working on a research paper which is condensing that. So मेरे हिसाब से जो perfect है उसमें first P is the policy. मुझे लगता है government who's taking a very strong step here in terms of leadership, that's really a very plus point, because policy को holistic होना पड़ेगा. I think एक product में ये chemical डालना है, इतना डालना है, नहीं डालना है, chemical नहीं, sorry, fortificant डालना है. So all those kind of things are okay, but I think we need to view पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का जो पॉलिसी है वो थोड़ा मल्टी सेक्टोरल होना चाहिए. थोड़ा इट शुड टेक फीडबैक फ्रॉम एवरीबडी, फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स, वेदर इट्स वॉश, वेदर इट्स एजुकेशन, वेदर इट्स क्लाइमेट चेंज, लाइक आई सेड, वाटर रिसोर्सेज, कितना वाटर रिक्वायरमेंट होगा, एंड थिंग्स लाइक दोस. सो माई परफेक्ट का पी मीन्स पॉलिसी रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. जैसा कि बाकी पैनलिस्ट भी बता रहे थे, देयर आर कॉस्ट चैलेंजेस जो उनको फेस करने, जो गवर्नमेंट कहती है नहीं हमें नहीं पता, आप हमें सेम प्रोडक्ट पे दो, तो वो कैसे वो पॉलिसी बने जिसमें इनके भी कंसिडरेशंस लिए जाएं. सो दैट्स माय पी. E for me perfect में next word is E. E for me stands for education. हम लोग ने कई बार ये बात करी कि consumer की education हो, but मेरे ख्याल से industry की भी education हो, मेरे ख्याल से researchers की, हमारी भी education हो कि क्या है actually, what is the evidence, how should we go about it, what are the steps for everybody. I don't think कोई भी यहाँ पंडित है जिसको सब कुछ आता है. So everybody has to learn, right? We as a educated so-called elite class still are not very, like हम में भी कुछ ही जाएंगे जो चीज़ लेंगे. सो एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड अक्रॉस द बोर्ड. सेम वे जैसे आशा से या आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हम मिड डे मील में सोच रहे हैं या पीडीएस में सोच रहे हैं कि डाल दिया है, उनको एजुकेट करने के लिए क्या, आपको सबको पता है एनीमिया के लिए वो क्या काउंसलिंग देती हैं, वो बोलती हैं हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, राइट, ब्रेस्ट फीडिंग करो, बच्चे को अच्छे से दूध पिलाना है, कोलेस्ट्रॉल करना है, ये करना है. बट उसकी इफेक्टिवनेस भी जैसा उन्होंने बताया, एक मोटिवेशनल वर्कर था उसने चेंज कर दिया कंपनी का, वो भाग गया और दूसरा नहीं कर पाया इतना. तो इसी तरीके से आई थिंक एजुकेशन इज माई ई विच इज़ वेरी की फॉर एवरीबडी. आई थिंक इट शुड बी ऑन द सेम लेवल. हम सब इकट्ठे यहीं पे इकट्ठे कर रहे हैं, तो देयर इज नो बडी हायर एंड लोअर, एवरीबडी हैज़ टू बी एजुकेटेड. R, perfect, R. Second, first R is research. मुझे लगता है rigorous research. आपने बोला studies हैं, मैं review कर रही हूँ वो सारी studies actually अभी. 8 studies from India till date have been reported. हाँ, 8 हैं total.
उन 8 स्टडीज़ में, और कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, बट जो पब्लिश्ड लिटरेचर है, जिसको आप जर्नल में पब्लिश करते हैं, जिसकी आप वैल्यू मानते हैं, उस एविडेंस में 8 स्टडीज़ हैं, और उन 8 स्टडीज़ की लिमिटेशंस भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, सब कुछ है. सो आई थिंक अभी हम एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड कि ये करना है और चीज़ें करना है. सो हम कहीं इम्प्लीमेंटेशन और रिसर्च को साथ साथ लेके चल रहे हैं, विच इज़ फाइन, बट आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप योर ईयर्स एंड आइज ओपन क्योंकि कई बातें नई चीज़ सीखने को मिलता है. सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली वो किसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, क्या अंदर कोई इंटरेक्शंस, क्योंकि लोगों के खाने की चॉइसेस बहुत अलग अलग है. कोई दही चावल खाता है, कोई दही बिल्कुल नहीं खाता. सो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं लोगों के, और उसके साथ वो फोर्टिफाइड राइस खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा. सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. तो आई थिंक R इज़ फॉर रिसर्च स्ट्रेंथनिंग. F for me, fortification नहीं है. F for me is funding, financial. ये अभी आप बोल रहे हो, आप कॉस्ट आपको 5 पैसा है, जो भी है, गवर्नमेंट का कोई कॉस्ट है, कंज्यूमर का कोई कॉस्ट है, बट लॉन्ग रन में ये सस्टेनेबल कैसे होगा? किसी ने सोचा है, हमने कोई मॉडल बनाया है फाइनेंसेस का कि जिससे ये अनअबेटेड, मतलब रुके नहीं, परेशान ना होए और चलता रहे जो चीज़ हमेशा. सो जैसे कुछ लोअर क्वालिटी हम कर देंगे क्या, या कुछ हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए. सो कैसे फंडिंग कहाँ से आएगी? हम बजट में हर साल अनाउंस करते हैं ICDS में बढ़ा देंगे, बट कभी कम हो जाता है, कभी एलोकेशंस बढ़ जाते हैं. वी ऑल नो दैट, राइट? सो F का फॉर मी इज़ फंडिंग इशू. कैसे सबका टिक मार्क रहेगा और सब इसके लिए प्रो रहे. सो दैट इज़ वन F फॉर मी. F के बाद E, perfect में. So second E is my engagement strategy. Engagement with people like you, with all the stakeholders, not only industry, with everybody across the board. Engagement अगर है मेरी आपके साथ और stakeholders का commitment है, तो हम चीज़ बदल सकते हैं. Then there is, so education and that first E and this engagement, I think they go hand in hand. It is very important for us to engage with each other. चाहे, और ये नहीं, अगर मैंने बोला कि मैं fortification के साथ नहीं हूँ, तो ये नहीं कि आप मुझे बाहर जाओ, इसको नई मीटिंग में नहीं बुलाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट्स जस्ट दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड लर्न अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. सीखिए तो कि क्या है, क्या इशू है, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट. सो कम विद एन ओपन माइंड, ऑल ऑफ अस. मैं भी सोच रही हूँ, अच्छा नहीं, फोर्टिफिकेशन ठीक नहीं है, बट हो सकता है आपने मुझे प्रूव किया कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है. सो लेट्स डू दैट. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव एंगेजमेंट. C फॉर मी इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग. कौन करेगा ये? हु इज़ डूइंग इट? अल्टीमेटली मिलर्स कर रहे हैं, और बैठे आप लोग हैं जो सिर्फ हम बेच रहे हैं चीज़ को. अल्टीमेटली हम लोग तो सेल करेंगे, प्रोडक्ट बन के आएगा जब. तो जो एक्चुअल मिक्सिंग कर रहा है, मिलिंग कर रहा है, मशीन चला रहा है, क्रिएट कर रहा है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कौन कर रहा है, कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है उसकी बात? गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम्स चलाती है उनकी ट्रेनिंग के लिए, FSSAI करती है कंडक्ट कुछ रेगुलर सेशंस, बट क्या सबको ही कर सकते हैं उससे? मतलब उतना काफ़ी हो जाता है. आई थिंक कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और वो करने के बाद हमको क्या बोलना है, व्हाट इज़ द लैंग्वेज, लाइक ही सेड कि ये लैंग्वेज बोलनी है, कौन सी बोलनी, किसको सिखाएंगे हम, तो वो कहाँ हो रहा है? Where is that capacity happening? Why are we not being able to convince people? So C for me is capacity building and capacity strengthening. So that is very important. And last but not the least is T. T is use of technology. I think आज जो हमारे पास इतना boom of technology है, हर चीज़ स्मार्टफोन. अभी मैं पैच लगा लूँ, बात करें, मुझे हर सेकंड मैंने एक चम्मच भी कुछ खाया, मुझे उसका पता चल जाएगा, मेरी शुगर इतनी हो गई, मेरा कम हो गया. You know about all that, right? आप तो सब एडवांस्ड जानते हो. सो वो पैचेस से मेरा इतना हाई टेक्नोलॉजी लेवल्स हो गए हैं, तो हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्यों नहीं कुछ फोर्टिफिकेशन में, क्यों नहीं कुछ चीज़ें सोच सकते? सो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ऑल दीज मॉडर्न वेज ऑफ इम्प्रूविंग योर डाइट, diversifying your diet, making it better. So for me, the solution is perfect. Well, again, thank you, Shweta, for the comprehensive approach that you have told us about fortification. So it's not only one directional, it's a multi-directional approach. बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. We've come a long way. There's still a lot left to do. Of course, we will do that. So just before I close the session, is there any unanswered question? Is there any unanswered concept or undealt concept that my panel members would want to take or to cater to? I would request any one of you. Atulji. अगर हम 5 फूड की बात करें जिसको FSI ने अप्रूव किया है, तो उसमें उन सारे क्वेश्चंस को उन्होंने लिया, उनका सॉल्यूशन दिया और उनको लोगों के साथ शेयर किया. जब FSI ने इस फूड फोर्टिफिकेशन के एजेंडा को ड्राइव किया था, उस समय दे हैव डिस्कस दिस इशू विद एकेडमिक्स, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट,
और सारे लोगों के साथ बात की और बहुत इसमें मीटिंग्स हुई, काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी रिसर्च को किया और उसके बाद ऐसा नहीं है कि किसी के दिमाग में आया फोर्टिफिकेशन और एकदम से कर दिया। तो दिस इज़ अ वेरी वेल डिफाइंड साइंटिफिक स्ट्रक्चर अप्रोच नंबर 1। दूसरा एफएसआई ने लिया कि जो हम 5 फूड लेंगे, पर्पस क्या है कि उसमें जो बार बार सबके मन में आता है कि अगर मेरे को आयरन का डेफिशिएंसी नहीं है, मैं आयरन ज़्यादा खा लूँगा तो मुझे टॉक्सिसिटी हो जाएगा, तो उसको एड्रेस करने के लिए क्या है कि डोजेज जो है आपका फोर्टिफिकेंट का जो डोजेज है, आपको आटे में आयरन कितना डालना है, फॉलिक एसिड कितना डालना है, और चावल में आपको आयरन और फॉलिक एसिड डालना है, ऑयल और दूध में आपको विटामिन ए और विटामिन डी डालना है, और डीएफएस में डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट में आपको आयोडीन और आयरन डालना है, उसकी लिमिट डिफाइन करी। दूसरा क्या है कि ये सारे फूड प्रोडक्ट क्या है, अगर आप देखेंगे आप एक लिमिट से ज़्यादा खा नहीं सकते, तो कभी भी आपको ओवर ईटिंग या ओवर टॉक्सिसिटी, डोजेस का टॉक्सिसिटी का इम्पैक्ट नहीं आएगा। एफएसआई ने इन फैक्टर्स को भी बहुत ध्यान से लिया। दूसरा बात है कि जब जो अभी हम बात कर रहे थे कि आपने एक पॉलिसी बना दी, उसको जो फ्लोर मिल वाला या राइस मिलर अगर इसको इम्प्लीमेंट करेगा तो उसको उन्होंने इसीलिए कि फोर्टिफिकेंट, बिकॉज दे डोंट हैव कैपेबिलिटी टू जज द क्वालिटी ऑफ फूड फोर्टिफिकेंट या कितना डालना है, डोज कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो उन्होंने इसी बेस पे एफएसआई ने फूड फोर्टिफिकेंट सप्लायर्स को अप्रूव्ड किया बेसिस ऑन देयर कैपेबिलिटी, उनको कुछ गाइडलाइंस दी। तो जो फूड फोर्टिफिकेंट सप्लाई, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली फॉर दोज 5 फूड प्रोडक्ट ओनली, तो उन्होंने उन लोगों को बताया, उन्होंने वो स्टैंडर्ड पैक बना के देते हैं, आपका डोजिंग रेट फिक्स होता है, आप आराम से डाल सकते हैं और आप उसे वेरीफाई करते हैं, और आपका टेस्टिंग है इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल है या आप हाफ ईयरली NABL एक्रीडेटेड लैब से टेस्ट करते हैं, तो आपके रिजल्ट वैलिडेट होते हैं। एफएसआई ने ये भी डिसाइड किया कि आपने ट्रायल कर लिए, सब कुछ कर लिया, इंडस्ट्री को जब स्केल अप करना है तो कैसे करना है, उन्होंने बताया इंडस्ट्री को अगर आपको आटे का व्हीट फ्लोर का फोर्टिफिकेशन करना है, आपको किस साइज़ का ब्लेंडर लगेगा, क्या आपकी डोजिंग मशीन होगी, दे हैव गिवन ऑल द टेक्निकल डिटेल्स। आपको इनफैक्ट व्हेन यू आर डूइंग दैट फूड फोर्टिफाइड फूड, आपको किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन करना है, आपको कौन सा केमिकल यूज़ करना है, बिकॉज अगर आप आयरन चेक कर रहे हैं तो आपको इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल आयरन टेस्टिंग किट कौन सी लेनी है, और अगर आप ऑयल में आप चेक कर रहे हो विटामिन ए डी, तो आपको एंटीमनी क्लोराइड की कौन सी टेस्टिंग किट लेनी है। उन्होंने एक एक चीज़ को डिफाइन किया ताकि कोई एम्बिग्यूटी नहीं हो, बिकॉज दे नो बेसिकली दे आर ड्राइविंग ए वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। और हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ में 40 करोड़ आदमी तो सिर्फ एक र्यूमर पे ही कुछ कर देते हैं, सारे लोग एक बार में गणेश जी को दूध पिला देते हैं, अगर आपको ध्यान होगा। तो एफएसआई को पता था ये सेंसिटिव इशू है, दे कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग वेरी डिटेल मैनर, और इसीलिए जब इंडस्ट्री उसको रेप्लिकेट करती है फूड फोर्टिफिकेशन को, उनको सिर्फ एफएसआई के मैनुअल को ही रेप्लिकेट करना पड़ता है, तो देयर इज नो चांसेस ऑफ एरर। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव और साइंटिफिक अप्रोच है। हम लोग कर रहे हैं, एवरी मंथ वी आर डूइंग 10,000 टन एडिबल ऑयल, फोर्टिफाइड एडिबल ऑयल वी आर सप्लाइंग अंडर ब्रांड पतंजलि, और लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक है, कोई टेस्ट में चेंज नहीं होता। एफएसआई हैज प्रूवन दैट शेल्फ लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, अपीयरेंस में ओनली सम चैलेंजेस विद डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट, तो स्टिल एक्सपर्ट आर वर्किंग ऑन दैट। तो मेरा तो आप सबसे यही कहना है। ठीक है, थैंक यू। Thanks a lot, Atul ji. Of course, closing the session with some of the summary points that we've taken from the panel discussions. Fortification, of course, is a food-based approach, long-term, effective, and a well-controlled approach. So it is not something which is baseless. आज ऐसे सीखा और कल हमने implement कर दिया, ऐसा नहीं है. There is a whole lot of science which went behind it. There is a plethora of science, evidenced science behind it. एंड उसके बाद उसको प्रॉपरली यूज़ करके गाइडलाइंस और रेगुलेशंस बनाए गए हैं। इंडस्ट्री इज़ डूइंग इट्स बिट, दे आर लर्निंग, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ लर्निंग, वो फीडबैक कर रहे हैं फिर FSSAI को, दे आर मेकिंग द चेंजेस देयर। Of course, mandatory fortification se there are good set of learnings, and now they are going to be implemented. And at the same time, we are developing some more scientific evidence in terms of tolerable upper limits. So RDA 2020 has come up with tolerable upper limits. So there is a gauging that is happening. हम fortify कर रहे हैं. Is it beneficial on a long run? Is it beneficial for masses at large? क्या लॉन्ग टर्म में खाने से कोई इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, एंड थिंग्स माइट इवॉल्व एज एंड व्हेन देयर आर चेंजेस इन दीज supplementary areas also. So of course, as WHO defines it, it's a food-based approach wherein nutrients are added in small and meaningful quantities. So that is something we would also look forward that in whatever products we are adding
we are adding it in a meaningful quantity so that it actually ends in giving the benefit it is intended to. At the same time, when consumed on a regular basis, if at all it is required, of course, it has to be a part of balanced diet. Diet should be the first source of achieving all the nutrients. But if there are some inadvertent gaps which are existing, then fortification comes as a bridge to solve this problem. And this has been an effective strategy so far, and we hope that there are further better strategies coming up and we get a healthy nation to work with. So with that, I would like to thank my panel members for their views and suggestions. Thank you. And Sinex for giving us this opportunity to share our thoughts. Thank you, Dr. Betsy. Really appreciate that. And a big round of applause for this wonderful panel session on food fortification and health, and wonderful contribution. I think one of the most, deep conversations which happen realistic and real time, which I have heard throughout the day. Now, before I bid adieu to this fantastic panel, I would like to call on stage Ms. Meenu Bansal, Field Marketing Expert, South APAC, APAC from Merck Life Sciences, to kindly do the honors of felicitating this wonderful panel of experts here. Meenu, welcome to India Food Nutrition Summit and Awards 2022. Kindly, if you would do the honors. Request all the honorable panel members to quickly pose for a photograph with Meenu. Meenu, I would request you to please join them. And can we have a big round of applause for this wonderful panel once again? Mr. Atul Joshi, Dr. Shweta Khandelwal, Ms. Ranjit Kaur, Fani Kumar, and Dr. Agatha Betsy for wonderfully moderating the session. Thank you so much, panel members. Indeed, one of the most enriching panels we have heard throughout the day.